A very good evening to one and all. I, Dr. Rohit Khokar, welcome you all on my personal behalf and on behalf of Vidya Prakashan Mandir Limited in today's event, a school virtual summit for principals and teachers, a virtual summit. कुछ करना है तो डटकर चला, थोड़ा दुनिया से हटकर चला, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलटकर चला, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हौसला हो मंजिल तो राह में आराम कैसा, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख, सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा पूरी मेहनत का फला, किसी और को ना इंतजार कर, जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो करते इंतजार नहीं उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं. I take this proud privilege to welcome everyone, every educator with us, and especially our key speakers and panelists. I take proud privilege welcoming Madam Bharti Gandhi with us, who is a name which needs no introduction. She is a founder director, City Montessori School, Lucknow. I also welcome Ma'am Sunita Gandhi, daughter of Ma'am Gandhi, for today's valuable time. कि मैडम आपने टाइम निकाला और हमारे साथ आप आज जुड़ गए हैं. Abhi shortly, Professor Rajput will join with us and will also join by our Om Pathak sir, our next key speaker. I also welcome our panelists today who have taken out a time. Madam Lata Vidyanathan, which is again a name into education industry. Ma'am, welcome. And aaj aaye hain. Thank you very much कि आपने time दिया. I welcome Madam Aluwalia, Madam Madhu Aluwalia, who is a senior advisor in NABET and Quality Council of India, New Delhi. I also welcome Mr. Sudhanshu Shekhar, who is a national awardee principal of KL International School with us. So welcome once again, everyone on the panel. Before starting, I would like to introduce our organization and our line. Prakashan Mandir Private Limited is a leading publisher pan-India in the field of education for over 40 years with a successful track record of quality publication of children books and has been positioned as a pioneer in quality of content and publication domain. It has been honored with a numerous award to include National Award by the Honorable former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam in 2005. The inevitability of drastic changes in education system is now clear to everyone. Teaching and learning would never be the same in post-corona. World after lockdown are lifted nationally and internationally. Change shall always be resisted by reluctant, grudgingly accepted by lethargic, and enthusiastically appreciated by the innovators and entrepreneurs. Change will come anyway, overcoming all impediments. There is a silence in the education world due to the direct or a classroom communication gap between students and teachers. Dialogue is the real force of education. उसी काम को करने के लिए आज की परिचर्चा का हम लोगों ने जो है आयोजन किया है और मैं पुनः आप सब लोगों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं. अब मैं दोबारा से आप लोगों को सामने प्रोफेसर राजपूत सर को मंच पे आने से पहले इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं और फिर आग्रह करूंगा कि सर आएं और अपने इतने वास्ट एक्सपीरियंस जो उनको है उसके बारे में और उससे जुड़े हुए इस समस्या को कैसे सॉल्व करें उसके बारे में बताएं. Professor Rajput is an Indian educationist, writer, and a former director of the National Council of Educational Research and Training, NCRT. When the National Council for Teacher Education, NCT, was established in 1994, he was the founder chairman of the council, where he served until he is moving 1999 to NCRT as its director. Rajput sir has published several articles and books on physics and education in English and Hindi languages. He had written Encyclopedia of Indian Education, Education in Changing World, Fallacies and Forces, Contemporary Concerns of Education, and many more. Sir was awarded and conferred with Padma Shri Award by President of India. And sir, आपके लिए तो परिचय करना मतलब मैं तो बच्चा हूँ तो I can take this privilege to do it. Over to you, sir, please. आप एक बार बता दीजिए कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर बहुत अच्छे से पहुंच रही है और उसके साथ पहुंच रही है जैसे पहले थी.
स्टीव पाठक जी, लता जी, मधु जी, डॉक्टर खोकर और सुनने वाले साथियों और अध्यापकों, मुझे अभी तक की परिचर्चा सुनकर बहुत अच्छा लगा। कितनी व्यवहारिक बातें हमारे सामने आई हैं, और क्यों ना आती। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक अदृश्य शत्रु ने सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया है, एक कर दिया है, और सब लोग एक ही समस्या का समाधान ढूंढने में लगे हुए हैं। हमें यह भी पता लगा इस दौरान कि मनुष्य को लगता था कि हमारा ज्ञान बहुत बढ़ गया है, हमने बहुत कुछ प्रकृति के रहस्यों को जान लिया है, लेकिन हमें यहाँ प्रकृति ने महसूस करा दिया कि जी नहीं, अभी आप बहुत पीछे हैं, आपको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ खोजना है। मैं इसमें ये भी देखता हूँ कि करीब अनुमान है कि 150 करोड़ बच्चे या करीब 170 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं, सीधे प्रभावित हुए, उनका बचपन प्रभावित हुआ है, और उनका जीवन में जो कहते हैं बचपन का आनंद है वो प्रभावित हुआ है। बहुत से माता पिता मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि हम 1 साल बच्चे को ना पढ़ाएं तो कोई चिंता नहीं, लेकिन उसकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। ये सुरक्षा सुनिश्चित कौन करेगा? इसके लिए स्कूलों को जो बात अभी संभवतः नहीं आई कि अपनी कार्य संस्कृति बदलनी पड़ेगी। बच्चे केवल पढ़ने के लिए नहीं आएंगे, आपको बच्चे की हर चीज देखनी पड़ेगी, आपको स्वच्छता देखनी पड़ेगी, आपको उसकी संवेदनात्मक स्थिति को देखना पड़ेगा, आपको ये देखना होगा कि वो लोगों से कैसे मिलता जुलता है। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा कि हर अध्यापक अब अपने उत्तरदायित्व को पुनर्परिभाषित करे और स्वयं करे, क्योंकि दुनिया में जहां पर भी अध्यापकों ने बहुत बड़ा योगदान किया है, जैसे मैं जापान का उदाहरण लेता हूँ कि सबसे अधिक पीड़ित, प्रताड़ित, अपमानित देश था 1945-46 में, और कैसे आगे बढ़ा। मैं जब वहां जाता था तो यही पूछता था कि आपने कैसे ये परिवर्तन किया। हमने परिवर्तन स्कूलों से किया, अध्यापकों से किया, उन्हें बताया कि आप देश का निर्माण कर रहे हैं, आप भले ही आप सफाई कर रहे हो, आप शिक्षा दे रहे हो, आप शोध कर रहे हो, अध्यापक के अंदर देश को ये भावना भरनी है कि वो देश का निर्माण करता है, वो हजारों लोगों का जीवन बदल सकता है, उसका काम छोटा नहीं है, किसी से भी छोटा है। ये प्रश्न उठेगा जब आप अन्य चीजों की तरफ जाएंगे। जैसे 1970 के आसपास हम लोग अक्सर चर्चा सुनते थे कि 4 ढंग से बात की जाती, जो कोरोना के बाद भी आपको देखने पड़ेंगे। पहला, और जिस पर अभी पूरी चर्चा, कैसे पढ़ाया जाए। एक जमाना था जब ऑडियो जो एड्स की बात करते थे, ओवरहेड प्रोजेक्टर बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। वहां से चलते चलते हम कहाँ पहुंच गए, हमारी यात्रा की तेजी बढ़ गई, गति बढ़ गई, और कोरोना ने उस गति को और कई गुना एकदम बढ़ा दिया। लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी हुआ कि हम सीखने में आगे बढ़ गए। आज ये वेबिनार जो शुरू हुए हैं, इनको शुरू होने में शायद और कई वर्ष लग जाते अगर कोरोना ना होता। हर आदमी ने सीखा और समय का उपयोग करना सीखा। ये भी देखिए कि मनुष्य की प्रवृत्ति है, वो खाली नहीं बैठ सकता, घर में कब तक बैठा रहेगा, क्या करेगा? पढ़ेगा, लिखेगा, वेबिनार में हिस्सा लेगा, उसकी तैयारी करेगा, और ज्ञान का जो प्रवाह बनता रहेगा। मनुष्य के विकास की यात्रा, मानवीय सभ्यता के विकास की यात्रा कुछ चीजों से जनित होती है। मैं रविन्द्रनाथ टैगोर का जिक्र करता हूँ, उन्होंने कहा था कि हर बच्चे के पास 2 वरदान होते हैं, और स्कूलों का कर्तव्य है कि दोनों वरदान कुंठित न हो। और वो वरदान क्या है? पावर ऑफ आइडियाज, पावर ऑफ इमेजिनेशन। मैं जब ये 2 शब्द सुनता हूं तो मुझे तुरंत लगता है कि, और सामान्य भाषा में कहूं तो, क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी। सारा ज्ञान जो मनुष्य ने प्राप्त किया है वो इन्हीं 4 शब्दों के आसपास प्राप्त किया है। आपका कर्तव्य ये होगा कि ये 4 के चारों शब्द व्यवहार रूप में आते रहें। हमारा कोई भी पाठ्यक्रम, हमारी कोई भी परीक्षा पद्धति बच्चों के पावर ऑफ आइडियाज और पावर ऑफ इमेजिनेशन को कुंठित न करे। उनकी संवेदनात्मक स्थिति, उनकी सहजता, उनका आपस में भाईचारा, ये बढ़ते रहे।
तो सबसे पहला प्रश्न यही था जो कि कैसे पढ़ाया जाए, और इमीडिएट लर्निंग की बात हम दोनों की। हम जानते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग शुरू हो गई थी, बड़े अच्छे ढंग से शुरू हो रही थी, लेकिन उसका जो परिमाण है, द मेजर है सडनली increased manifold and therefore issues have also increased manifold। वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल डिवाइड तक जाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि कौन पढ़ाए, ये प्रश्न का उत्तर जब ढूंढेंगे तो लगेगा कि टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मूलभूत रूप से बदल जाना होगा, अन्यथा वे अपना कर्तव्य निर्वाह नहीं कर पाएंगे। ये प्रश्न भी आपके सामने आ रहा है कि क्या पढ़ाया जाए, कितना पढ़ाया जाए, बस्ते के बोझ क्या हो, एनसीईआरटी करिकुलम कैसे कम करें। हमारे एक बार मंत्री जी ने कहा था कि हम 50% कम कर देंगे, तो ऐसा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अब उसका ढंग बदल जाएगा, कंटेंट का टोटल अप्रोच टुवर्ड्स कंटेंट विल चेंज, और कुल मिलाकर के an attitudinal transformation has to take place and has to take place at every level and with every individual। बच्चे को समझने के लिए बहुत अधिक कार्य करना पड़ेगा। जो लोग बच्चों के मनोविज्ञान में कार्य करते हैं, शोध करते हैं, उन्हें नई परिस्थितियों में अपने शोध को नई दिशा देनी होगी। बिना उसके मुझे नहीं लगता कि हम बच्चों के ज्ञान की प्राप्ति के संघर्ष को सरल बना पाएंगे। आपका उद्देश्य ये है कि जो ज्ञान, जो कौशल, जो सृजनात्मकता, जो नवाचार की अपेक्षाएं हम बच्चों से कर रहे हैं, उनके लिए क्या हम उन्हें वो आवश्यक सब कुछ दे रहे हैं, इमोशनल, मेंटल स्किल्स, नॉलेज, विजडम, डिस्क्रिमिनेशन। ये इतनी चीजें हैं जिनके सारे के सारे के आसपास हमारी परिचर्चा और चर्चा होनी चाहिए। तो कुल क्या चाहिए हमें, सारी दुनिया में इस पर चर्चा होती है कि 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। पहला तो सब जानते हैं, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी। ये 1972 में एडगर फॉरे की रिपोर्ट आई थी, तब ये बात कही गई थी कि मनुष्य को मनुष्य कैसे बनना है ये देखना पड़ेगा। मैं एक व्यक्तिगत बात यहाँ कह देता हूँ कि एनसीटी जब बन रही थी तो मैं कई लोगों के पास गया कि अध्यापक, अध्यापन और शिक्षा, इन तीनों को मिलाकर कोई एक सूत्र वाक्य मुझे दीजिए जो मैं इसके एम्ब्लम में लगाऊं, और मुझे मिला। एनसीटी का, अब मैं बहुत जिक्र नहीं करता, लेकिन एनसीटी का सूत्र वाक्य है गुरुर गुरुतमो धामा। जितने भी अध्यापक सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उसको जाने। मैंने इसका अर्थ पूछा, अर्थ यह है कि टीचर टेक्स ए पर्सन फ्रॉम ह्यूमैनिटी टू डिविनिटी। मनुष्य से दैवत्व की ओर ले जाए, वो अध्यापक है। और ये ऐसा नहीं कि शब्दों में कहा जाए, अब इसकी आवश्यकता है। जैसे एक और बात आप सबके ध्यान में आ रही होगी, पाठ्यक्रम कैसे बदलेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे कि लर्निंग टू लर्न से अब कोई छुटकारा नहीं है। एक कौशल आज सीख लेने से वो 25 साल, 30 साल, 45 साल मेरी मदद करेगा, वो संभव नहीं रहा। इसलिए जो एक छोटा सा वाक्य बार बार दोहराया जाता है कई बार, यावत जीवेत अध्येते विप्रः, समझदार व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है। ये हम सुनते थे लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते थे। आज हम इसे व्यवहारिकता में देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया में हर जगह कहा जाता है लर्निंग टू लर्न एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब हमें बच्चों को ये सिखाना है कि तुम्हें स्वाध्याय खुद सीखना है, ये सीखो कि आगे कैसे और सीख सकोगे, और कैसे सीखोगे, क्या सीखोगे, कैसे निर्णय लोगे। क्योंकि हम लोग ये कहते रहे कि ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं होता। गीता का वो श्लोक की लाइन हम कोट करते हैं, नहीं ज्ञाने सदस्यम पवित्रम विद्यते। इस पृथ्वी पर ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है सोचने का, जो आगे के बच्चों को सीखना पड़ेगा। केवल ज्ञान से मनुष्य दैवत्व की ओर नहीं जाता, मनुष्य तो नहीं प्राप्त करता। हिरोशिमा का उदाहरण मैं देता हूं। 1945 में विज्ञान का जो चरम उत्कर्ष था, सारा ज्ञान जो हम एटम के बारे में, न्यूक्लियर के बारे में, बड़े बड़े मैथमेटिक्स, साइंटिस्ट लास अलामोस में इकट्ठे हुए, एटम बम बना।
लोगों ने कहा विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया, ज्ञान में हम बहुत आगे गए थे, लेकिन उस ज्ञान का दुरुपयोग हुआ, और दुरुपयोग क्या हुआ? हिरोशिमा। तो ये एक चीज, डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ज्ञान था, विवेक नहीं था। तो आगे चल करके हम हर बच्चे को बच्चों में बताएंगे कि जब तुम निर्णय लोगे कि वो क्षमता विकसित करोगे, उसकी तैयारी करो, ज्ञान बुद्धि विवेक के अंतर को जानो, क्योंकि मनुष्य, बर्ट्रैंड रसल ने एक जगह लिखा है कि केवल ज्ञान पर निर्भर रहकर मनुष्यता आगे नहीं चलेगी। बड़ा अजीब सा लगता है, हम तो ज्ञान को सबसे पवित्र मानते हैं, लेकिन वो आगे लिखता है कि जब तक ज्ञान के साथ डिस्क्रिमिनेशन पैदा नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, ज्ञान का सदुपयोग नहीं होगा। हमारी तो परंपरा में यही कहा जाता है कि 4 सोपान है स्कूलों के लिए, विद्या सीखने के लिए। अध्ययन, हम अभी अध्ययन पर चर्चा कर रहे हैं, कैसे होगा, उसके तरीके क्या होंगे, कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, किसे पढ़ाएगा, ये 4-5 शब्दों के आसपास हमारी चर्चा है। लेकिन इसमें 3 पक्ष और है, इसके बाद मैं बंद करूंगा, शायद समय हो गया होगा। अध्ययन, उसके बाद मनन, जो हम स्कूलों में नहीं देते थे बच्चों को, आज भी नहीं करते। 50 मिनट का लेक्चर है, प्रोफेसर साहब गए बोले, और जब उनका 52 मिनट हो गया, दूसरा व्यक्ति सामने खड़ा हो गया आकर के, तो चले गए। हमारी परंपरा वैसा नहीं था। आप उसे मनन का, सोचने का समय दीजिए। अगर मैंने 20 मिनट सुना है तो मुझे 5-10 मिनट चाहिए ये सोचने के लिए कि मैंने क्या सुना है, मैंने क्या रखा है मस्तिष्क में, और वहां पर मुझे लगेगा कि मुझे ये समझ में आया था, ये नहीं आया। तो तीसरा सोपान है चिंतन। मैं अपने किसी न किसी से बात करूंगा। बच्चे जब आपस में बात करते हैं, सीखते हैं, क्या वो चीज अब कम हो जाएगी या कैसे उसको, ये मनन, अध्ययन, मनन, चिंतन, ये तीनों चीजें जो है आपको अपने सारी व्यवस्था में बनाए रखनी है, क्योंकि शाश्वत है। दुनिया में कोई उसको बना नहीं कर पाता कि बिना पूर्ण अध्ययन के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण है चौथा, उपयोग। उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है जो जिसका उपयोग व्यक्ति न जानता हो। मैं एक उदाहरण देता हूं कि जब मुझे डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाया गया, मैंने पढ़ लिया, मैं परीक्षा में पास हो गया, लेकिन मैं समझा नहीं, क्योंकि मुझे लगता था इसका इस्तेमाल क्या होगा। अगर मुझे ये बता दिया जाता उस समय ये क्यों किया जा रहा है, आवश्यक क्यों है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ज्ञान का जो हिस्सा दीजिए वो उसको बताइए। और अब जो हमारे संबंधों में जो परिवर्तनों में आया है कि स्कूलिंग बियॉन्ड स्कूल्स, स्पोर्ट्स बियॉन्ड प्ले फील्ड्स, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कही जा रही हैं चारों तरफ, उनको मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन परिवर्तन बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन ऐसा नहीं है कि चल नहीं रहा था, हम बहुत आगे बढ़ रहे थे, हम आगे बढ़ रहे थे, हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे, हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में काम कर रहे थे, तेजी से जा रहे थे। मुझे याद है कि 1985 में मैंने एक लेख पढ़ा था फिजिक्स की एक प्रोफेशनल पत्रिका में, कंप्यूटर टेरिफाइड्स का सिलेबस बना था यूनाइटेड स्टेट्स पे, बहुत शुरू से 80 या 75 के आसपास, कि लोग क्लिक करने से डरते थे। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, और उस प्रवृत्ति में हमने अपने टीचर्स को भी देखा था कि कंप्यूटर के उपयोग में वो पीछे हटते थे। हमारी एक होती है, बड़ी मुश्किल से लोग धीरे से आने, अब उन्हें बच्चों ने सिखा दिया, घर में बच्चों ने सीखते हुए सिखा दिया। और अगर आप देखें, ढूंढे, तो रेसिप्रोकल लर्निंग का इससे बड़ा और कोई उदाहरण मैंने नहीं देखा है। जबरदस्त ढंग से रेसिप्रोकल लर्निंग हो रही है। मैं सीख रहा हूँ अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से, हमें से बहुतों का यही अनुभव है, और हमें ये आश्चर्य होता है कि बच्चे नई तकनीकी से, नई विधा से कितनी जल्दी अपने को एडजस्ट कर लेते हैं। प्रसन्नता भी होती है, अच्छा भी लगता है। और इस समय एक और चीज हुई है कि जिस स्क्रीन टाइम की बात अभी आई थी, वो पाठक जी ने कही, पहले सबको लगता था कि दुरुपयोग हो रहा है, चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो। आज नहीं लगता, आज लगता उपयोग हो रहा है। बच्चों के मन में भी ये बात बैठ गई है, और बच्चे भी अब उस उपयोग को ज्यादा जानने लगे हैं, दुरुपयोग से आगे हटते हैं। अंतिम बात मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि बहुत से अध्यापक इसको सुन रहे होंगे, उनको मैं कहूंगा, ये मानकर चलिए कि भारत के भविष्य का निर्माण आप कर रहे हैं, आपसे ज्यादा कोई नहीं कर रहा।
आप चाहे प्राइमरी के अध्यापक हो, चाहे विश्वविद्यालय में हो, कहीं पर भी हो, मैं अब ये बात कहता हूँ, लोग मुझे अहंकारी कहें, कुछ भी कहें, कि हाँ, मैंने बहुत से बच्चों के जीवन में उनकी दिशा को बदला। और अब उनकी सफलता की बात जब मैं सुनता हूँ, जैसे आप सब सुनते होंगे, हर अध्यापक की उपलब्धि होती है, तब मुझे लगता है कि मैंने जीवन में बहुत बड़ा काम किया। तो गांधी जी ने लिखा, मेरी माँ ने कहा था कि यदि अपने जीवन में तुम एक का जीवन बचा सकते हो या एक का जीवन बना सकते हो तो तुम्हारा जीवन सफल माना जाएगा। अधिक क्या कर सकते हो तो ईश्वर की कृपा है। इसलिए हर अध्यापक पर ईश्वर की कृपा है। जैसे हर बच्चे को 2 वरदान मिले हैं, पावर ऑफ आइडियाज, पावर ऑफ इमेजिनेशन, वैसे ही हर अध्यापक को ये अवसर मिला है कि वह जीवन में लोगों को उसके उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त करने में प्रसन्नता और संतुष्टि का अवसर प्रदान करने में सहायता करे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much. And this is what we people are blessed today कि आप सब जैसे इतने एक्सपीरियंस लोग हैं जिसने एकदम इस वेबिनार को अटेंड करने से पहले का माहौल और इसको अटेंड करते हुए के माहौल में हम देख रहे हैं कि बहुत सारा एक पॉजिटिव वाइब्स चेंज हो रहा है। और राजपूत सर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि घर के अंदर दादा दादी पोते पोतियों से सीख रहे हैं व्हाट्सएप करना, तो जब उस एज के अंदर वो ट्रांजेक्शन हो सकता है तो यस इट कैन बी एनीवेयर व्यूड एंड इतना। राजपूत सर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना समय और अपना इतनी अच्छी बात के लिए हमें दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।